Good evening, students. Welcome to the chapter of motion in a plane, and the today's topic is vectors. This is the session number 1 of this topic. And before starting with this topic, I would like to state one thing that the directional aspect of the physical quantity in one-dimensional motion can be taken as positive or negative because in one dimensional motion there are only two directions. So the physical quantities, say for example the displacement है या this velocity है या acceleration है, इसको हम positive और negative signs use करके describe कर सकते हैं. However, in the two-dimensional or the three-dimensional motion, that is the two-dimensional motion means in a plane, or three-dimensional motion that is in a space, we use vectors in order to define the position or the motion of the physical quantities. अब physical quantities जो हैं which are existing in this universe, they are classified as a scalar and vector. Everybody knows about the scalar and the vector quantities क्या होती हैं. Scalar quantities में क्या है, they have got only the magnitude or no direction or no fixed direction. That is, for example, अगर हम बात करें this distance की या speed की, ठीक है. अभी मान लीजिए for example this is the point of origin O of this Cartesian frame of reference, and let us say my home is located here, ठीक है. और now I have to go to this temple here, and I take the path. It is a zigzag path. Let us say I go from here, and then I again come here, and then again I move straight away, and then I again take like this one, and then I reach the temple here. So here you can see here that my this speed is not having one particular direction. ठीक है, यहाँ से जा रहा हूँ, फिर अगेन यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज हो गई, अगेन ये डायरेक्शन हो गई, फिर ऐसे चली गई. सो द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड is not fixed. It is not in one particular direction. So therefore this physical quantity, that is speed, is called a scalar quantity because it is not having any fixed direction. It has got the magnitude, but it doesn't have any fixed direction, and that is the reason why it is called a scalar quantity. There are many physical quantities which have got only magnitude and there is no direction है, ठीक है. उसमें आप यू कैन जस्ट टेक फॉर एग्जांपल डेंसिटी है, ठीक है ना, या मास है, तो उनका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर तो हो गए. बट देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हु विच डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो भी जो फिजिकल क्वांटिटीज जी हैं वो आपको स्केलर में के अंतर्गत आएंगी. वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, दे हैव गॉट द मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन. जैसे आपको पता है ये फोर्स है, व्हेन एवर आई एम अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स, अगर मान लीजिए कोई एक स्टेशनरी कार है खड़ी हुई है और उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो व्हेन आई एम जस्ट, जब मैं धक्का लगा रहा हूँ उसको, तो देन आई विल बी अप्लाइंग द फोर्स ओनली इन वन डायरेक्शन. सो फोर्स हैज गॉट वन डायरेक्शन एंड इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड ऑल्सो, so therefore it is a vector quantity. ठीक है. Now vector quantity is represented by an arrow. जैसे ये आपकी एरो है, वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस वन. द लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ये जो लेंथ है एरो की, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. वो अभी हम समझने, अभी मैं उसको आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. और ये जो हेड है, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो ये हो गया हाउ डज दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर. द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द हेड गिव्स यू द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स यू द मैग्नीट्यूड. ठीक है. ये हो गया जस्ट वेक्टर का ये सिंबल हो गया, एंड व्हाट the length of the vector tells you and what the head of this arrow tells you.
अब वेक्टर में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, तो हम अभी जस्ट एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से दिस इज अ वेक्टर पी, ठीक है, ठीक है ना, और एक ये वेक्टर है आपका, लेट अस सी, एक वेक्टर है ये क्यू, ऐसे कर लेते हैं। ये एक वेक्टर पी है, लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओ जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। तो वन ऑफ द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर p, लेट अस से दिस इज द वेक्टर p, एंड द अदर वन इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर वेक्टर से q, ठीक है। ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मैं ये कहता हूं कि ये जो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर p is equal to, let us say, 8 Newton, and the magnitude of the force represented by vector q, मान लीजिए इसको मैं कहता हूं 10 न्यूटन है, ठीक है। अब मेरे को इसको जो है आपको आई हैव टू रिप्रेजेंट दीज टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस एन एरो। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हम कुछ एजम्पशन ले सकें। एवरीबडी, एनीवन कैन हैव एनी एजम्पशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, लेट अस से, 1 न्यूटन फॉर एग्जांपल। सो व्हाट आई विल डू इज, अगर ये आपका क्यू वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो इस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए आपकी 10 सेंटीमीटर है। सो दिस इज अ वेक्टर क्यू हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 न्यूटन, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये मैंने अज्यूम किया है, मीन आई हैव टेकन दैट आई विल रिप्रेजेंट 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लेंथ हो गई वेक्टर की, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर क्यू। अब हम आते हैं वेक्टर पी पे। मान लो वेक्टर पी, अच्छा वेक्टर पी कितना है, 8 न्यूटन है। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी, मान लीजिए ये इट इज इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर राइट नाउ। सो अगर ये लेंथ आपकी मान लीजिए इतनी बड़ी ये है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये अगर आपका 10 सेंटी ये है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो प्रोपोर्शनेटली इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं कुछ हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका P। सो ये 10 सेंटीमीटर है, तो P का जो लेंथ होगा, ये जो वेक्टर होगा, लेट अस से आई एम डिफाइनिंग दिस पोजीशन, दिस वेक्टर, this is the origin. Now origin क्या means, I have taken that this object is lying at the origin of the Cartesian frame of reference, ठीक है। So ये वेक्टर आपका जो, अब अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write this as an vector OP, ठीक है, and this can be written as vector OP, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ एक एंगल थीटा होगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इसका जो है, दिस मीन्स द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर OP विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो 8 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 8 न्यूटन। तो दिस इज हाउ we define any this physical quantity by the vectors. वेक्टर की जो लेंथ है that is proportional to the magnitude of that particular vector, और जो उसकी जो and the जो arrow है, it gives you the direction of that physical quantity. तो ये तो हो गया आपका वेक्टर्स को कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, हाउ वी डिपिक्ट द वेक्टर्स ऑन पेपर, और वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या बताती है और एरो क्या बताता है, ठीक है। अब इस केस में जैसे ये है कि मैंने इसको क्या किया, ये एक आपका पॉइंट, ये आपको कोई एक पॉइंट है, दिस पॉइंट हैज बीन टेकन एज द ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पर लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग गई हैं, एक यहाँ पे P हो गया और एक लेट से ये आपको मान लीजिए इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है।
ये Q हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी अगर इफ दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो द वेक्टर OQ, अगर हमने इस ये वेक्टर OQ से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं और इसको वेक्टर OP से डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स दैट इज इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अगर ये 8 न्यूटन है तो इस वेक्टर की जो लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ we draw the vectors and this is how we define the physical quantities in terms of vectors. अच्छा, अब इम्पोर्टेंट है इस वेक्टर्स में कि there are two ways of vectors, वेक्टर एडिशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन में ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट O, अब इसके ऊपर कोई दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेट अस से एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स लेट से इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको मान लीजिए मैंने Q ले लिया, इसको मैंने मान लीजिए P ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो वी बेसिकली यूज टू टाइप्स ऑफ these laws, that is the this triangle law of vector addition हम बोलते हैं। triangle law of vector addition, और एक आपका होता है this is called the parallelogram, law of vector addition। ठीक है, सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा माइनर जो है डिफरेंस है। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है एंड दीज टू, एक फोर्स मैंने इधर डायरेक्शन में लगाया है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर Q, और एक मैंने इधर लगाया है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर P। तो अब इन दोनों का मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। तो आई कैन यूज टू वेज, I can find the resultant by using the triangle law of vector addition and the second one is the parallelogram law of vector addition। अभी triangle law of vector addition में जो सबसे important चीज जो आपको याद रखनी है कि the head of one vector should touch the tail of another vector taken in the same order, ठीक है, taken in the same order, and the head of one vector should touch the tail of another vector taken in the same order, and they should be represented by the sides of a triangle the head of one vector should touch the tail of another vector and they should be represented by the sides of a triangle। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ taken in the same order नीचे। The head of one vector should touch the tail of another vector, yeah, and यहाँ लिख देता हूँ and
they should be represented by the sides of a triangle taken in the same order. Taken in the same order. ठीक है, अब इसको मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प अब इस पिक्टोरियली मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा. तो ट्राइंगल लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द हेड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स should touch the tail of another vector and they should be represented by the sides of a triangle taken in the same order, and the resultant of that is and the resultant will be represented by the third side taken in the reverse order. ये so triangle law में क्या है, the head of one vector should touch the tail of another vector and they should be represented by the sides of a triangle taken in the same order, and the resultant, that is the resultant of these two vectors जो अभी मैं हम बात कर रहे हैं, that is which are मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, and the resultant of those two vectors will be represented by the third side taken in the reverse order. So इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन को. इस डेफिनेशन को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक वेक्टर ये है, अभी जो अभी हमने यहीं पे लिख देता हूं मैं, एक वेक्टर ये है q जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट्स से दिस इज अ फोर्स which I am representing by the vector q and another force is acting on the same object which I am representing by vector p. ठीक है, ये हो गया. तो ट्राइंगल लॉ में क्या कहता है कि जो आपका एक वेक्टर का ये, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर, मान लीजिए इसको मैंने पॉइंट ओ ले लिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नाउ दिस वेक्टर, इसका वेक्टर का हेड क्या ये है, तो दिस द हेड ऑफ वन वेक्टर शुड टच द टेल ऑफ अनदर वेक्टर. तो ये जो वेक्टर का, ये दूसरा वेक्टर का टेल ये है, तो हमें क्या करना होगा, आई हैव टू मेक अनदर वेक्टर विच शुड बी पैरेलल टू दिस वेक्टर. ठीक है, और उसकी लेंथ भी सेम रखनी है, बिकॉज दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, व्हेन देयर डायरेक्शन इज द सेम और दी मैग्नीट्यूड भी द सेम होगा. तो अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें सेम रखना तो क्या है, इसकी लेंथ और जो मैं यहाँ पर वेक्टर बनाऊंगा जो कि इसकी मीन्स आई हैव टू मेक अनदर वेक्टर यहाँ बनाऊंगा ऐसे करके, तो क्या होगा, अब दिस वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू दिस वेक्टर और इट इज इक्वल टू दिस वेक्टर, नॉट इक्विवेलेंट. तो ये हो गया आपका वेक्टर p. ठीक है, ये क्या होगा, ये पैरेलल हो गया इसका. सो आई हैव मेड अनदर वेक्टर, मींस एक बनाया है मैंने जो कि इसके पैरेलल है और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है हो गई. सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, द हेड ऑफ दिस वेक्टर इज टचिंग द टेल ऑफ दिस वेक्टर. नाउ एज पर द डेफिनेशन, the head of one vector should be touching the tail of another vector and they will be represented by the sides of the triangle taken in the same order, and the resultant will be represented by the third side taken in the reverse order. So कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर का जो एडिशन है, it will be taken in the same order means, देखो आप ध्यान से मैं अभी बना रहा हूं ऐसे करके, यूं, ये मान लीजिए R है रिजल्टेंट. सो दी सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर Q प्लस वेक्टर P will be equal to vector R. Q, the sum of these two vectors are represented by the sides of this triangle. Let us say इसको मैं O कर देता हूँ, इसको पॉइंट A कर दिया, इसको मैंने B कर दिया. So the vector this Q and the vector P, they are represented by the sides of the two triangle, and the third, that is the resultant vector, is represented by the third side
टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। नाउ इसका ऑर्डर, एडिशन का जो ऑर्डर है वो कैसे है, वी आर एडिंग दिस वेक्टर, दिस इज वेक्टर क्यू एंड दिस वेक्टर पी। तो इनका आप ध्यान से देखो, ये वी आर एडिंग दिस, इनका ये ऑर्डर है, ठीक है, इस प्रकार का है। और जो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या है, ये हो गया, ये देखिए। तो ये ऑर्डर का मतलब ये है कि वी आर एडिंग दीज टू वेक्टर्स, यू कैन से इन वन डायरेक्शन, मतलब ये आपका एक डायरेक्शन हो गया, एंड द रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी डिपिक्टेड इन द अदर डायरेक्शन। इस प्रकार से ये देखिए, ये दिस वेक्टर q प्लस वेक्टर p ये ऐसे हैं, इनको हमने ऐड किया है, और जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन हो रहा है वो इधर इस तरफ की तरफ आ रहा है, और जो एडिशन किया इनका डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ में। तो ये हमारा हो गया इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअली में ये फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है, दिस इज द फोर्स विच आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर p। बट you as per the triangle law मैंने क्या किया, because the head of one vector has to touch the tail of another vector, so I have made another vector here which was parallel to it, and इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो भी इसकी लेंथ जो है इस वेक्टर के बराबर हो गई। सो बिकॉज द मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, सो दिस आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस वन एज द वेक्टर p। अब फिर क्या किया, एज पर द डेफिनेशन वेक्टर q प्लस वेक्टर p और इन will be equal to the vector r. Now this addition of these two vectors has been taken in the same order, that is in this order जो मैंने arrow बनाया है, and the resultant का जो this resultant is being represented by the third side of a triangle which is taken in the reverse order। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एडिशन अगर हो रहा है दो वेक्टर का, अगर ऐसे हो रहा है तो रिजल्टेंट ऐसे होगा, और अगर वेक्टर दोनों का एडिशन ऐसे हो रहा है तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। बस ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में क्या आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ जो वेक्टर में क्या होगा कि देयर विल बी टू वेक्टर्स, जो अभी हमने बताया, दिस इज वेक्टर q, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये p है, दिस इज द वेक्टर p एंड दिस इज द वेक्टर q, और यू कैन से दीज आर द टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट o, ठीक है, व्हिच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और ये दोनों जो है आई हैव रिप्रेजेंटेड दीज टू फोर्सेस बाय द वेक्टर p एंड q रिस्पेक्टिवली। अब इनके बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा ही है, ठीक है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर है तो क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच से निकलेगा बिल्कुल। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स की इन दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल बीच से निकलेगा, मैग्नीट्यूड अगर बराबर है। बट अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है p का, तो जो ये रिजल्टेंट है ना, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स p, ये p की तरफ भागेगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो p की तरफ। अगर इफ p is greater than q, if the magnitude of p is greater than q, if the magnitude of q is greater than p, तो क्या होगा, ये कुछ q की तरफ भागेगा, ये जो रिजल्टेंट है वो q की तरफ भागेगा इफ q is greater than p। अब दूसरा डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। मान लीजिए आपका q है, ये आपका p हो गया वेक्टर, ये एंगल दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन देयर रिजल्टेंट r जो है इट विल बी गिवन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देते हैं ऐसे, इट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपका p वेक्टर है, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। और ये आपका हो गया, इसका इसका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच से निकलेगा। इसका जो डायरेक्शन डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये इट विल बाइसेक्ट दिस एंगल, और अगर p की वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्टेंट p की तरफ भागेगा,
क्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्यू की तरफ भागेगा, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, अगर ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर P है, ये थीटा हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि द टेल ऑफ बोथ दीज टू वेक्टर्स विल टच ईच अदर, अनलाइक द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ में क्या था, एक वेक्टर का हेड वाज टचिंग द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। यहाँ पर क्या है, दोनों की टेल्स, दोनों वेक्टर की जो टेल है वो आपस में टच करेंगी, ठीक है। वो हम यहाँ पे टच हम यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों की जो टेल है दे आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। एंड व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर, फिर हम क्या करेंगे, एक हम पैरेलल, इसके पैरेलल हम एक बनाएंगे वेक्टर और इसके पैरेलल हम एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। तो ये एक वेक्टर बन गया, सॉरी एक पैरेललोग्राम बन गया ऐसे करके, ठीक है। सो इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है ये, दिस विल गिव यू दी रिजल्टेंट आर, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। ये है, लेट अस से ये है आपका है, अगर मैं कहता हूँ ए बी सी डी कर देता हूँ, ए बी सी डी, इसको ई लिख लो आप, देन दिस रिजल्टेंट आर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सी डी, दैट इज डी बी, ठीक है। The resultant R will be given by the diagonal of this parallelogram, and this इसकी वैल्यू कितनी होती है वो सबको आपको पता ही है, which is equal to पी क्यू, पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब इसमें एक और होता है, इसमें एक होता है लॉ ऑफ साइन भी होता है। लॉ ऑफ साइन में क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं कि अगर ये जो ये है दिस, ये है आपका डी, मान लीजिए मैं दिस लेट्स से द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स और दिस वेक्टर इज लेट अस से ए, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसका मैं बी मान लेता हूँ, और इसका जो रिजल्टेंट सी आ गया, लेट अस से। सो यूजिंग द लॉ ऑफ साइन हम क्या लिख सकते हैं, सी, ये जो सी है ना, दिस विल बी सी डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज द एंगल जस्ट ऑपोजिट टू दिस डी बी। ये सी है, इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल क्या हुआ, 180 माइनस थीटा होगा, विच विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई, मान लीजिए एंगल है आपका बीटा, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई इसके जस्ट ऑपोजिट बनाएंगे साइन बीटा, और ये मान लीजिए बी है, इसकी जो मैग्नीट्यूड अगर बी है तो इट विल बी इक्वल टू बी अपॉन, ये मान लीजिए अल्फा है, मान लीजिए ये वाला एंगल, दैट इज बी डी सी, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। नाउ दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ साइन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू, अच्छा साइन ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, सी अपॉन ये साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज 180 साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, divided by a upon sin beta is equal to b upon sin alpha. So this formula is also very important if you want to calculate the angle of inclination of this resultant R with any one of those two vectors. अगर आपको मान लीजिए ये जो वेक्टर है आपका, जिस वेक्टर Q और वेक्टर R के बीच में एंगल निकालना है, that is alpha, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। If you want to find the angle of inclination between this vector r and this vector this p, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो this formula is also very very important. So this formula and this formula, ये आपको फ्यूचर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका काफ़ी यूसेज होगा। So this is how we define. So today in nutshell we have studied about the what vector is all about, what is a scalar quantity क्या है, and we have studied about this vector addition,
वेक्टर एडिशन में हमने दो लॉज को पढ़े हैं, दैट इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर है पढ़ा, और एक हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा है। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी मैंने कुछ समझाने की आपको कोशिश की है। एंड मीन्स हाउ दिस टू वेक्टर्स आर एडेड, मीन्स हाउ द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स are added in case by using the triangle law of this vector, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको अभी इसमें इस लेक्चर में बताया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पोजिशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देयर आफ्टर we will try to do some numericals. So thank you very much for your time, and I hope that you have understood what I have tried to teach in this session. And if you have any questions or any queries, you can definitely contact me. And till then, have a nice day. Bye.